Sir, this program, what we conducted jointly, Samyak Education Society and Savika International, it was, we can say, a joint great effort. By the way, this we could connect three, four more dignitaries, and we attached more people. Through their inclusion, we will reach to more community, especially Rajendra Nibban sir joined from Rajasthan, all the way he traveled here and he enlightened us. And Praveen Kumar sir, he all the way traveled from Telangana. Despite his busy schedule, he told us how he changed the Dalit ideology with the Sphero ideology. The sky is the limit. And Deepak Kadam sir came all the way from Nanded. We last year conducted program along with the Praveen Gaurkhade sir. And we committed that time that we will take the program in the Bhopal under his coordination and joint effort. Excellent program was there, and especially the students he brought here. I feel the message has gone to the younger generation. That is very important for us. That younger generation should enlighten so that they will get the inspiration, and definitely they will carry our movement. Because we have limited time in this world. Our life is only 70 plus minus day. So this younger generation is more important for us because they are now like a soiled this one. So we can cultivate their mind easily. So thank you very much. Thank you very much for the joint. Thank you, sir. It was really excellent motivational event, Pay Back to Society. I really appreciate to all the dignitaries who visited here, from traveling a long journey, and they guide us, a guide to all the children. I really appreciate the children, their patience. They stay back here like from 7 o'clock to evening 4 o'clock. So really appreciate Samyak Education Society as well, who supported well to conduct and execute this event very well. Best wishes for their future. Thank you. Thank you so much. I would like to request Ojaswini to welcome Deepak Kadam sir. तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। I would like to request Ojaswini to, sorry, I would like to request Kanika to welcome. I would like to request Arnav Patil to welcome Rajendra Nibban sir. आर्थिक तथा शैक्षणिक सहायता प्रदान करें। सर प्लीज आप आए और दो शब्द करें। महाकारुणिक सभा भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनको मैं 3 बार वंदन करता हूँ। मेरे समक्ष उपस्थित सभी अतिथिगण, साविका फाउंडेशन के सभी टीम मेंबर्स,
और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम प्रवीण गोरखेड़े है और मैं प्रेसिडेंट और फाउंडर हूँ सम्यक एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का। और आज का जो मेरा विषय है आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वो है हमारे सोसाइटी द्वारा पिछले 7 सालों से किया गया कार्य और भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं गरीब बच्चों के लिए वो। तो मेरा एक प्रेजेंटेशन है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और जो भी लोग पीछे बात कर रहे हैं वो कृपया सामने देखें। यहाँ पे आप बात करने नहीं आए हैं, गप्पे मारने नहीं आए हैं। यहाँ आपके पास में अच्छे अच्छे अधिकारी आए हैं, आपको उनको सुनना है और अच्छी बातें यहाँ से सीख के जाना है। तो किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए प्रोग्राम के आखिरी तक। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हमने तथागत भगवान बुद्ध की एक फोटो लगाई थी। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सम्यक एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, वो बुद्ध के दिखाए गए मार्ग पे चलते हुए समाज हित के लिए कैसे काम कर सकते हैं उस पर विचार करती है और उस विचारों का क्रियान्वयन जो है धरातल पे करती है। ये हमारी संस्था का लोगो है। अब आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बुद्ध की बताई गई 10 पारमिताएं हैं, जिसमें पहली पारमिता आती है दान पारमिता, यानी कि हम सभी जो लोग हैं उसको बुद्ध के अनुसार मूर्ख व्यक्ति कहा गया है। मूर्ख व्यक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें प्रज्ञा नहीं होती, विजडम नहीं होती, हमें सही ज्ञान नहीं होता है, तो इसलिए हमको मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। तो मूर्ख व्यक्तियों को क्या क्या करना चाहिए, तो वो 10 पारमिता यहाँ पे दी हुई है। पहला है दान पारमिता। तो अगर आप घर परिवार से समृद्ध हैं और आपके रहन सहन खाने पीने के अलावा आपके खर्चों के अलावा अगर आपके पास में धन संपत्ति बचती है तो उसको आपको समाज हित में जो है लगाना चाहिए। तो दान पारमिता को बुद्ध ने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की तरह रखा है। इसमें आप भिक्षुओं को दान दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई गरीब बच्चा है आप उनकी मदद कर सकते हैं, एजुकेशन में उनकी फीस भरने में आप वो भी काम कर सकते हैं। आपको लगता है कि पर्यावरण के लिए कुछ काम करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, तो आप अपना अर्थ दान जो है पेड़ लगाने के लिए भी कर सकते हैं। आपको लगता है हमें वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, आप वो काम कर सकते हैं। तो दान देने के कई तरीके हैं। आप किसी को शिक्षा का दान भी दे सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है वो कोचिंग नहीं लगा सकता, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको घर में पढ़ा सकते हैं, तो ये भी एक तरीके का दान है। तो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से दान पारमिता पूरी कर सकता है। इसके बाद में मॉरलिटी आता है। मॉरलिटी को शील बोलते हैं और उसको और आसान भाषा में मैं बताऊं तो 5 तरीके की अच्छी बातें जो बुद्ध ने बताई हैं, जो हमको जीवन में पालन करनी चाहिए और हर मानव इसको कर सकता है। कोई भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, ये सभी व्यक्ति कर सकते हैं। कौन सी है वो 5 बातें? हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करेंगे और हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। ये जो 5 बातें हैं ये हर धर्म जाति संप्रदाय के लोग जो हैं अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। ये 5 प्रकार की अच्छी बातें, इसको हम लोग शील बोलते हैं बुद्धिज्म की लैंग्वेज में, इसको हम मॉरलिटी इंग्लिश में बोलते हैं। और इसके बाद में तीसरे पॉइंट में आता है रेनेंशिएशन, यानी कि नेस्टर में पालनी आती है, जिसमें आप एक भिक्षु की तरह जीवन जीते हैं। और एक आम इंसान भी जो है वो एक भिक्षु की तरह जीवन जी सकता है। कैसे? अपनी आकांक्षाओं को, अपने डिजायर्स को कम करके। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जाम्पल किसी शादी में जाते हैं, हम 1 रसगुल्ला खाते हैं, हम 2 खाते हैं, लालच होता है तो हम 4 भी खा लेते हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी 2 की है लेकिन हम 4-5 भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डिजायर है, हमारा लालच है। तो आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको सीमित कर लीजिए, लिमिटेड कर लीजिए, तो आप भी एक भिक्षु का जीवन जी सकते हैं। जो आपके पास में एडिशनल चीजें हैं, एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो आप लोगों को बांट सकते हैं। तो ये नेस्टर में पालनी होगी। उसके बाद में है विजडम, यानी कि प्रज्ञा। प्रज्ञा जो है एक मेडिटेशन का पार्ट है। जब आप ध्यान साधना करते हैं तो आपका जो मेंटल एनालिसिस होता है, आप मस्तिष्क के लेवल पे जो है आप तर्क करना, एनालिसिस करना सीख जाते हैं। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, क्या समाज के लिए सही है, क्या समाज के लिए गलत है। और ये जो एनालिसिस की प्रक्रिया है, ये जो परखने की प्रक्रिया है अपने भीतर और अपने बाहर, अपने सराउंडिंग्स में, इसी को प्रज्ञा बोलते हैं, विजडम बोलते हैं।
अब इसके बाद में एनर्जी यानी वीर्य, यानी कि हम जो अपना एफर्ट्स लगाते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो टाइप और उसको फॉलो करता है, ये वीर्य की बात में है। आप अपनी जो क्षमता है, आपकी जो ऊर्जा है उसको सही जगह पे जो है आप फोकस करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, तो इसको वीर्य की बात में बोलते हैं। उसके बाद में पेशेंस है। स्टूडेंट लाइफ में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम हताश निराश हो जाते हैं और कई बार हमारे रिजल्ट में आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। आपको अपने अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी खुद जनरेट करनी होगी कि ठीक है, आज नहीं हुआ, हम और मेहनत करेंगे और अगली बार और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, तो उसके लिए आपको पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है ट्रुथफुलनेस, यानी कि हमको सच बोलना है। जैसे मैंने आपको पंचशील में बताया था, झूठ नहीं बोलना है, यहाँ लिखा है सच बोलना है। यानी कि आप जीवन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक संकल्प ले सकते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। शुरू में हो सकता है दिक्कत जाए, उसकी संख्या कम कर दो, क्वांटिटी कम कर दो, कम झूठ बोलो, फिर धीरे धीरे उसको 0 कर दो तो आप सच बोलने लग जाएंगे। तो ट्रुथफुलनेस के ऊपर भी बुद्धा ने जो है फोकस किया है। उसके बाद में आता है डिटर्मिनेशन, यानी कि अधिष्ठान बोलते हैं पाली लैंग्वेज में, बुद्धिज्म की लैंग्वेज में। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प। कोई भी काम को करने के लिए आपको अपने जीवन में एक संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है, और जब तक ये काम पूरा नहीं होता तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो तथागत बुद्ध ने दृढ़ संकल्प को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। इसके बाद में लविंग काइंडनेस है, जिसको हम मैत्री बोलते हैं। हमें जो है हर प्राणी के लिए मैत्री करना चाहिए, चाहे वो पशु हो, चाहे इंसान हो, चाहे हमारा शत्रु क्यों ना हो, हमको उनके प्रति भी मैत्री करना चाहिए कि उसको ज्ञान नहीं है जो वो कर रहा है, वो खुद की भी हानि कर रहा है और समाज में दूसरों की भी हानि कर रहा है। तो ऐसे लोगों के प्रति भी हमारे मन में मैत्री का भाव होना चाहिए। उसके बाद में इक्वानिमिटी आता है। इक्वानिमिटी को पाली लैंग्वेज में उपेक्षा बोलते हैं, और हम इसको और इजी वे में अगर समझना चाहें तो उसको मिडिल वे बोलते हैं, मध्यम मार्ग बोलते हैं। तो जैसे कभी हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में, चाहे हमारे सीनियर्स भी यहाँ बैठे हैं या स्टूडेंट्स हो या ओल्ड एज पीपल, सभी के जीवन में जो है सुख दुख बना रहता है। ये जीवन का परम सत्य है। कभी भी कोई भी टाइम एक जैसा नहीं रहता, कभी अच्छा समय आएगा, कभी बुरा समय आएगा। तो उसमें हमको क्या करना चाहिए, उसको हमको मध्यम मार्ग में रहना चाहिए। अच्छा समय आए, ठीक है, अच्छा समय है, नोटिस कर लिया। बुरा समय, ठीक है, बुरा समय, ये भी निकल जाएगा। ये आपके मन में एक भाव होना चाहिए। तो आप गुड और बैड सिचुएशन को बैलेंस करना सीख जाएंगे। तो जो बैलेंस सिचुएशन है उसको उपेक्षा बोलते हैं, यानी कि मिडिल वे। अब मैं आपको अपने सम्यक एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के बारे में बताऊंगा, उसकी वर्किंग बताऊंगा और उसका जो फ्यूचर प्लान है वो बताऊंगा। सम्यक एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी जो है नॉन प्रॉफिट सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, और जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीब बच्चों की शिक्षा था। क्योंकि सम्यक एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के गठन से पहले हमने कई जिलों में, भोपाल के, मध्य प्रदेश के कई जिलों में हमने जो है विजिट किया था। वहाँ पे हमने कैडर प्रोग्राम्स लिए थे। मूवमेंट से भी हम लोग जुड़े रहे, तो हमको मालूम है ग्रामीण क्षेत्र में हमारे लोगों की क्या परिस्थिति है। उनके हमारे लोग मोस्टली जो है किसी के खेतों में मजदूरी करने का काम करते हैं, मनरेगा प्रोजेक्ट्स में मजदूरी करने का काम करते हैं। उनके पास में खुद की खेती की जमीन बहुत कम होती है, और उनके पास जो जमीन भी होती है उसमें वो बंजर जमीन होती है। उनको सिंचित जमीन सरकार की तरफ से नहीं मिलती है, और कई तरह की प्रताड़ना भी उनको गाँव में झेलना पड़ता है। क्योंकि और भी कई समृद्ध समुदाय के लोग हैं जो वहाँ उनको समस्या करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने ग्रामीण क्षेत्र में देखा, और शहरी क्षेत्र में जब हमने स्लम्स का विजिट किया तो वहाँ पे भी कंडीशन कोई अलग नहीं थी। वहाँ पे भी जो बच्चे हैं उनको वो सुविधा वंचित थे, उनको सही गाइडेंस के लिए कोई व्यक्ति आके समझाते नहीं है। उनको अगर फीस भरनी पड़ती है तो भी उनके फैमिली मेम्बर्स में अगर 1-8% कोई काम कर रहा है तो उसको कई बार फीस जो है डिले भरना पड़ता है, ड्यूज में भरना पड़ता है या कंसेशन मांगना पड़ता है। कई बार किताबें नहीं मिलती तो सेकेंड हैंड किताबों से काम चलाना पड़ता है। कई बार उनको सेकेंड हैंड किताबें लेने के लिए भी पैसा नहीं होता है। और ये सच्चाई है।
तो ये सारी चीज़ें जब हमने सर्वे किया एक है, और भोपाल जैसे जिले में हमने देखा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मुस्तैदी के साथ में 365 डेज बच्चों की समस्याओं का निवारण के लिए काम नहीं कर रहा है। तो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट चालू किया भीमनगर में। सबसे पहले हमने एक कोचिंग क्लास स्टार्ट की और धीरे धीरे क्लासेस की संख्या हर साल एक एक दो बढ़ती गई। अब हम 8 जो है निःशुल्क क्लासेस बच्चों के लिए भोपाल के विभिन्न स्लम एरियाज में चलाते हैं। एक हमारी कोचिंग क्लास जो है माऊ इंदौर में भी हम अभी चला रहे हैं और हम ये बिल्कुल निःशुल्क चलाते हैं। इसमें जो है बच्चों को हम लोग विभिन्न प्रकार की जो है सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जब ये शुरुआत हुई थी सम्यक एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की, उसके 1 साल पहले हमें एक कॉल आया था गुजरात से। किरण पाटिल जी करके एक महिला थी जो 75% जल गई थी। और क्योंकि हम लोग सोशल एक्टिविस्ट शुरू से रहे हुए हैं, कॉलेज लाइफ में भी हम लोग बहुत एक्टिवली काम करते थे, तो हमको ऐसा लगा कि हम लोग को कुछ ना कुछ सहयोग इनके ट्रीटमेंट के लिए करना चाहिए। मैं उस समय कॉलेज लाइफ में था, 4th ईयर में था, तो बॉक्स भी दिखेगा। तो हम लोगों ने और मेरे कुछ मित्रों ने मिलके फंडिंग कलेक्ट करना स्टार्ट किया। लोगों से हम लोग आह्वान करते थे कि इस तरीके की एक महिला है गुजरात में और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो जो है 75% उनकी बॉडी जल गई है, सीरियस कंडीशन में है और उनके जान बचने के बहुत कम चांसेस है। लेकिन तो भी हम लोगों को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और सपोर्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो जब हमने इसको चालू किया तो 4 दिन के अंदर हमने 1.5 लाख रुपए कलेक्ट किए, जिसमें भोपाल के अशोका बुद्ध विहार सेवी समिति के काफ़ी लोगों ने सहयोग किया। और यहाँ पे पिपलानी में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के सिखों ने बहुत सपोर्ट किया। और बाकी हमने जो है बाकी लोगों से इस तरीके के डोनेशंस बॉक्स में कलेक्शन लेके टोटल 1.5 लाख रुपए जो है हॉस्पिटल के खाते में जमा कराया। आज वो महिला जो है पूरी तरीके से स्वस्थ है और एक अच्छा जीवन जी रही है। ये इस तरीके का हमने उनका एक बैनर बनाया था जिसमें उनकी अकाउंट डिटेल्स भी थी और इसको हमने कैंपेन में यूज किया था। सर्जरीज हुई थी उस समय। इस तरीके के हमने हेल्प फॉर ह्यूमैनिटी करके डोनेशन बॉक्स बनाए और कलेक्शन हमने किरण पाटिल जी के लिए जमा किया और हमने उनको गुजरात में हॉस्पिटल में जमा कराया। जैसा मैं आपको बता रहा था, हम लोग भोपाल में 8 फ्री कोचिंग क्लासेस चलाते हैं अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के लिए। तो ये कुछ तस्वीरें हैं कोचिंग क्लासेस की और इसमें हर प्रकार के बच्चे आते हैं। हम लोग किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं और जो भी बच्चे सुविधा वंचित हैं और जिनको गाइडेंस की जरूरत है, जिनको कोचिंग की जरूरत है, वो सुविधा हम जो है प्रोवाइड कराते हैं। हमने अपने कोचिंग क्लासेस में टीचर्स अपॉइंट किए हुए हैं। टीचर्स के लिए मान लें हम लोग आपस में कलेक्शन करके बहुजन समाज के लोगों से लेते हैं और उनकी सैलरीज करते हैं, लेकिन बच्चों से हम कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। ये कुछ प्रिंट मीडिया के फोटोज है। उन्होंने अपने फ्रंट पेजेस में हमको जगह दिया था और हमारी जो विभिन्न कोचिंग क्लासेस चल रही हैं उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स में छापे थे। ये कोविड के टाइम पे 2019 में पुणे के जुपिटर हॉस्पिटल में एक वेदांत करके बच्चा जो है 17 वर्षीय बच्चा एडमिट था आईसीयू में और हमको एक फ़ोन आया कि इस तरीके की बच्चे को सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है और वो बहुत सीरियस कंडीशन में है और उनको तकरीबन 3 लाख की फंडिंग की ज़रूरत थी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके भी काम करती है। जैसे कि हम खालसा एड इंटरनेशनल के साथ में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, रूरल होप फाउंडेशन यूएसए के साथ काम करते हैं, गोल्डन हार्ट क्लब वियतनाम के साथ भी हम लोग काम करते हैं। तो उस समय हमने खालसा एड इंटरनेशनल को रिक्वेस्ट किया कि आपके जो वॉलंटियर्स जो हैं पुणे में हैं, आप जाके हॉस्पिटल में विजिट कीजिए और अगर जेन्युइन केस है तो आप लोग इन्हें सहयोग कीजिए। तो खालसा एड इंटरनेशनल के वॉलंटियर्स ने वहाँ विजिट किया, तो पेशेंट की बच्चे की कंडीशन को देखा और उनकी फैमिली को 3 लाख का चेक वहाँ पे उनकी मदद के लिए दिया। तो आज ये बच्चा भी जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया, उस समय 17 साल का था और हेल्दी है और अच्छी लाइफ जी रहा है।
जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग स्टूडेंट्स को तैयार करने का काम करते हैं, तो कई सारे स्टूडेंट जिनको हमने 4th क्लास 5th क्लास 6th क्लास से एडॉप्ट किया, उनके एजुकेशन के लिए आज वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो ये आप जो पीछे तस्वीर दिख रहे हैं, ये रवि अहिरवार की तस्वीर है और ये PhD कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एट प्रेजेंट में, और ये हमारे स्टूडेंट में से एक है। श्रद्धा सुरनकर जो मंच संचालन कर रही हैं आपके सामने, इनको भी हमने बचपन से अडॉप्ट करके पढ़ाया है और 12th में इनके 85% बने थे और अभी ये नीट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। दीक्षा सुरनकर, इनको हमने लास्ट टू लास्ट ईयर सहयोग किया था नीट एग्जाम प्रिपरेशन में। इनको हमने विभिन्न कोचिंग क्लासेस के नोट्स भी प्रोवाइड किए थे और इनका जो है नर्सिंग टेस्ट में 55th रैंक लगा था मध्य प्रदेश में। अब ये गांधी मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग कर रही है। नेहा सुरनकर, ये भी भीम नगर स्लम में रहती हैं और इनके पिताजी जो हैं डेली वेजेस वर्कर हैं और इनके भी जो है 10th में 92% आए थे, 12th में भी काफ़ी अच्छे परसेंटेज थे और हमने इनको भी कोचिंग प्रोवाइड किया। और आज ये जो है छत्रपति साहूजी महाराज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी औरंगाबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंजीनियरिंग कर रही है। अब ये 3rd ईयर में। ये हमारे बच्चों की तस्वीरें हैं। हम इस एज ग्रुप से बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और जो भी सुविधाएं एजुकेशन से संबंधित बच्चों को लगती है, हम यथासंभव प्रयास करते हैं कि अलग अलग डोनर्स के माध्यम से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वो सुविधाएं जो हैं उन बच्चों तक पहुँचे। और जैसे आपके और हमारे बच्चे बहुत अच्छी स्थिति में एजुकेशन लेते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो उस प्रकार से हम लोग भी प्रयास करते हैं कि इन बच्चों को जो है किसी प्रकार की समस्या नहीं आए और जो भी शिक्षा संबंधित उनको चीज़ें चाहिए वो हम मुहैया करा पाए। ये हमने रिसेंटली जो है गैकलाम बनते, मेहता वॉलेंटियर्स, रूरल होप फाउंडेशन, खालसा इंटरनेशनल और USA और कनाडा के जो हमारे डोनर्स थे उनके माध्यम से विभिन्न गतिविधियों में इनको ट्रैक सूट, बैग, स्वेटर्स, इस तरीके के विंटर ट्रैक सूट्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बुक्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो सिस्टर ब्लू लोटस एक वियतनामी नन है जो रिसेंटली हमारे कोचिंग क्लास विजिट किया था और उन्होंने जो है बच्चों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किया था अपनी तरफ से। तो 100 बच्चों को हमने बुक्स बांटी। ये इस तरीके से बुक्स, कॉपीज, बैग, ट्रैक सूट्स ये सब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और समय समय पे हम लोग जो है ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक प्रोग्राम चलाते हैं। तो हर साल हम लोग 400 ब्लैंकेट विंटर्स में जो होमलेस बच्चे हैं और होमलेस जो लोग हैं उनको हम लोग स्ट्रीट्स में बांटते हैं और हम लोग मोस्टली जो है रात के 12 बजे निकलते हैं जब सड़कों पे लोग सोते हुए हमको मिलते हैं और हम वहाँ उनको जाके इस तरीके से ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं इनमें बनते गैकलाम हैं जो वियतनाम से हैं। यहाँ से वो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी से बुद्धिज्म में PhD कर रहे हैं और वो भी भारत में कुछ करने के इच्छुक रहते हैं। तो ये उनके योगदान से ही हम लोग ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन की हर साल करते हैं। अभी उनको 4-5 साल हो गए ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए। ये तस्वीरें हैं ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन की और समय समय पे हम लोग जो है टूर भी ऑर्गेनाइज करते हैं क्योंकि शिक्षा के साथ में हमको जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ जानकारी जो है बच्चों को देना चाहिए। तो हम लोग जो हिस्टोरिकल स्पॉट्स हैं उनमें बच्चों को लेके जाते हैं, जैसे सांची हो गया, सरदारा हो गया, मुरैनपुर हो गया, इवन जो रीजनल साइंस सेंटर हैं वहाँ पे हम लोग बच्चों को ले जाते हैं ताकि बच्चों को इतिहास के बारे में भी पता चले। प्लस जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात अभी सीरीज सोनल सर कर रहे थे, जो हमारे आर्टिकल 51A है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बोलता है कि हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना चाहिए ताकि हम लोग जो है वैज्ञानिक सोच डेवलप कर पाए, हम अंधश्रद्धा में नहीं पड़े, राइट। तो उसके लिए भी हम लोग जो है बच्चों को इस तरीके से रीजनल साइंस सेंटर्स विजिट कराते रहते हैं समय समय पर। रिसेंटली बुद्ध पूर्णिमा में हमको एक कॉल आया सेवा फाउंडेशन SBI से एंड उन्होंने इच्छा जताई कि इस बार हम जो है बुद्ध पूर्णिमा आपके बच्चों के साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं और कुछ
स्टेशनरीज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो हमने रिसेंटली 2024 में जो बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट किया सम्राट अशोक बुद्ध विहार गांधीनगर में, तो सेवा फाउंडेशन SBI के माध्यम से हमने ये ऑर्गेनाइज किया और उनको स्टेशनरी आइटम्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए। ये प्रेसिडेंट है हरी सिंह सर, सेवा फाउंडेशन SBI से। नेशनल नहीं तो इंटरनेशनल भी हम लोग जाके वर्क करने का प्रयास करते हैं। तो कोविड से पहले हमको जो है एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोग नेपाल जाके वहाँ पे एक मेहता वॉलंटियर्स करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो जोग्राफिकली चैलेंज रीजन्स में काम करती है जहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं जाती, इवन बाइक से पहुँचना भी बहुत दुर्गम है। तो ऐसे जगहों पे भी जाके हमने वॉलंटियर प्रोग्राम उनके साथ किया और उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हमने वहाँ के बच्चों को 4000 फीट ऊपर पहाड़ी में एक गवर्नमेंट स्कूल था, मतलब बादलों के बराबर में, तो वहाँ जाके उन बच्चों को जो है हमने ट्रैक सूट बांटे, बैग्स बांटे और जो बड़े बच्चे थे उनको स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन किए। ये मेहता वॉलंटियर्स नेपाल के गौतम सर हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन भी आप जुड़ने वाले। नेक्स्ट, कोविड में हमने बहुत काम किया, तो ये केवल एक अवार्ड का फोटो है, बट अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स के हम लोग काम नहीं करते हैं। हमारा बेसिकली मानसिकता ये है कि हम लोग गरीब तबके के लोगों को, बच्चों को कैसे सुविधा प्रोवाइड कराएं, यही हमारा उद्देश्य रहता है। तो एक अवार्ड हमको दिया गया था क्योंकि हमने 1 लाख लोगों तक राशन और कुक फूड डिस्ट्रीब्यूट किया था ड्यूरिंग कोविड। ये कुछ तस्वीरें हैं, अलग अलग एरियाज में हमने जो है ट्रक से राशन डिस्ट्रीब्यूट किया उसकी। एक मैं यहाँ पे आपको बात बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके के वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स हम लोग कोविड में कर रहे थे, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, अगर वो लोग नहीं होते तो ये वर्क करना हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगा। रागनी मैडम यहाँ बैठी हुई है। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनके परिवार वालों ने उनको जो है कोविड में जब उनको कोरोना वायरस हो गया तो उनको खटिया में बाहर, घर से बाहर धूप में छोड़ दिया। खाना भी वो दूर से देते थे जैसे हम जानवर को डालते हैं, और उनको कोई इलाज नहीं करता था उनका, उनको मेडिसिन नहीं देते थे, उनकी कोई केयर नहीं थी। रागनी मैडम ने देखा, रागनी मैडम का जो प्रोग्राम है ये भी हम रिसेंटली ये रूरल होप फाउंडेशन एक USA का ऑर्गेनाइजेशन है, इसके माध्यम से भी हमने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग एवरी ईयर करते हैं। तो ये इसकी फोटो है। और अम्बेडकर सोशल वेलफेयर मिशन कोलकाता, ये एक मॉन्क है, बुद्धिस्ट मॉन्क है, भंते दम्मानंदा उनके द्वारा संचालित किया जाता है। और ये एक बोर्डिंग स्कूल भी बच्चों के लिए चलाते हैं जहाँ पे 100 गरीब बच्चे उनके स्कूल में पढ़ते हैं। तो हम लोग उनको जो है फूड डोनेशन बेसिकली करते हैं और ये हम कंटिन्यूसली करते हैं ताकि बच्चों को वहाँ पे जो है अच्छा नरिशमेंट मिल सके, अच्छा फूड मिल सके, ताकि जो हमारे गरीब बच्चों में हमको डिफॉर्मिटीज़ दिखती हैं, कमियाँ दिखती हैं, शारीरिक कमियाँ दिखती हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो हम उनको प्रोटीन डाइट देने का भी हमारे संस्था की तरफ से वहाँ पे काम चलता है। ये उसकी तस्वीरें हैं, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित काम करना भी हमारी एक रुचि है। और आप जैसे जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो समय एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से रिसेंटली 500 ने लगा। यह की फोटो है, वहाँ भी हमको इन्विटेशन 15 दिन का हमने वहाँ पे भी सीखा। हम लोग कोशिश करते हैं कि अलग अलग कल्चर से कैसे हम लोग सकते हैं।
इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके लिए हम लोग बाहर जाके भी सीखने का प्रयास करते रहते हैं समय समय पे। फोक्सन मोनास्ट्री वियतनाम फोटो है, 15 दिन हमें उनके करने का सीखने का मौका मिला। जैसा कि सबसे पहले सभी महापुरुषों को पुष्पांजलि अर्पित किया और दीप प्रज्वलित किया। जितनी भी महापुरुषों की जयंती होती है हम उसमें बच्चों को बुला के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं और महापुरुषों के बारे में उनको बता। उसी दिन हम लोग बुक्स और इनके प्रोग्राम्स भी करते हैं। तो हम लोग जो है एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी पार्ट है। ये ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के टीचर्स, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग इंडिया के भी सब जुड़े हुए हैं और शिक्षा में क्या नया हो रहा है और बच्चों को क्या इजी वे में साइंटिफिक। तो हम लोग जो है एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी पार्ट है। ये ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के टीचर्स, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग इंडिया के भी सब जुड़े हुए हैं और शिक्षा में क्या नया हो रहा है और बच्चों को क्या इजी वे में, साइंटिफिक वे में पढ़ाया जा सकता है, इन सब विषयों पे ऑनलाइन जो है चर्चा होती है। तो हम इसका भी पार्ट है और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में बच्चों को ऑनलाइन इनसे कनेक्ट किया जाए ताकि ग्लोबली एजुकेशन के बारे में बच्चों को जानकारी दी जा सके और विभिन्न भाषाओं का भी ज्ञान करवाया जा सके। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अभी तक की एट प्रेजेंट की हमारी वर्किंग थी 7 इयर्स की सम्यक एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की। और इसके अलावा हमारा एक फ्यूचर प्लान भी है। हमारा फ्यूचर प्लान है कि जिस तरीके से हम लोग कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, बच्चों के पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनकी सिंसेरिटी बढ़ रही है, उनके परसेंटेज इम्प्रूव हो रहे हैं, वो अच्छे अचीवमेंट्स करने शुरू हो गए हैं। तो अब हमारा इतनी व्यवस्था हमने कर दी है। अब इसके आगे हम बारिश के बाद में इसी साल इसका कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे। तो क्योंकि आज हमको सभी लोग सुन रहे हैं, बहुत लोग सुन रहे हैं, अम्बेडकराइट लोग सुन रहे हैं, बौद्ध लोग सुन रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लोग भी सुनेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अभी तक हमने किसी से एक पैसा नहीं लिया है। ये जो हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं इसके कोऑर्डिनेशन के लिए भी हमने भोपाल से कोई कलेक्शन नहीं लिया है। हमसे जितना बना उसके आधार पर ही हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन आगे जब हम ये बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे उस बोर्डिंग स्कूल के लिए हम आप सभी से आह्वान करते हैं कि आप सभी लोग जो है सहयोग कीजिए। जो भी आपका सामर्थ्य है, हम कोई डिमांड नहीं करते, जो भी आपका सामर्थ्य है उस अनुसार आप लोग सहयोग करें ताकि 1 साल के टारगेट के अंदर जो है हम लोग ये बोर्डिंग स्कूल निर्माण करें और इनिशियली 300 बच्चों को वहाँ पे रेसिडेंस करके वहाँ पे उनको पढ़ाने लिखाने का काम चालू करें। और यही नहीं, केवल यहाँ पे एक स्कूल नहीं होगा तो यहाँ पे एक फॉरेस्ट मोनास्ट्री भी हम लोग डेवलप करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि इंटरनेशनल लेवल के जो मास्टर्स हैं वो कम से कम 1 महीने का यहाँ रेसिडेंस करके यहाँ पे बच्चों को सिखाएं, पढ़ाएं और उनको बचपन से तैयार करें ताकि सबसे पहले वो एक अच्छे इंसान बने। क्योंकि कोविड में हमने जो देखा, अगर हमें इंसानियत नहीं है या नहीं बची है तो कोई किसी को सहयोग नहीं करेगा। और कोविड में जिस तरीके से हमारे जैसे कई लोगों ने समाज हित में काम किया, अपने जान की परवाह ना करते हुए, ऐसे इंसानों की ज्यादा जरूरत है, मानवतावादी लोगों की ज्यादा जरूरत है। आप पढ़ाई में एक्सेल करेंगे, वो एक आपकी मेहनत आपको लेके जाएगा, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में ह्यूमनिज्म आपको डेवलप करना पड़ेगा। ह्यूमनिज्म आपको जन्म से नहीं मिलेगा, ह्यूमनिज्म आपको आपके सराउंडिंग से मिलेगा, आपके संगत से मिलेगा। आप अच्छे लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे तब मिलेगा। तो जितना अच्छा आपका सराउंडिंग रहेगा, जितना अच्छा आपका एनवायरनमेंट रहेगा, उतने अच्छे आप ह्यूमन बीइंग बनेंगे। तो इसीलिए ये जो हमारा उद्देश्य है बोर्डिंग स्कूल बनाने का, मैं इसमें एक बात और जोड़ रहा हूँ, ये बोर्डिंग स्कूल में हम बच्चों से एक पैसा नहीं लेंगे। ये बोर्डिंग स्कूल निःशुल्क चलेगा और इसका जो भी खर्चा होगा वो समाज वहन करेगा। क्योंकि बाबा साहब ने जो पे बैक टू सोसाइटी बोला है, पे बैक टू सोसाइटी अभी हमने सही तरीके से करना शुरू नहीं किया है। मैं अपनी बातों को विराम दूंगा, उससे पहले मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बायलॉज के बारे में आपको जरूर बोलना चाहूंगा, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे। और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बायलॉज में बाबा साहब बोलते हैं कि हमको बुद्धिस्ट सेमिनरीज डेवलप करना है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज डेवलप करना है।
हमारे खुद के प्रिंटिंग प्रेस होने चाहिए, हमारे खुद के एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए, बिजनेस होने चाहिए, ताकि समाज को कभी बैकअप की जरूरत पड़े, जैसे कोविड जैसी महामारी आ जाती है, समाज को बैकअप की जरूरत पड़े तो हमारे पास में अपनी एक पर्याय व्यवस्था होनी चाहिए। तो यही पर्याय व्यवस्था निर्माण करने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है और निस्वार्थ भाव से हम इन बच्चों को वहाँ पे सिखाने, पढ़ाने और तैयार करने का काम करेंगे हर प्रकार से। तो यही हमारा उद्देश्य है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का सहयोग हमें भविष्य में मिलता रहेगा। मैं साविका फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भोपाल में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, हमको सपोर्ट किया। नांदेड़ में भी मैंने साविका फाउंडेशन के जो प्रोग्राम है उसको अटेंड किया था और वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। मेरे को कदम सर से भी काफ़ी सीखने मिला, क्योंकि मैं पहली बार नांदेड़ गया था और अम्बेडकर वाली मिशन का जो मैंने काम वहाँ पे देखा तो मेरे को और इंस्पिरेशन मिला। क्योंकि हम जिस सिटी में रहते हैं वहाँ इस तरीके के इंस्पिरेशनल लोग नहीं है, इंस्पिरेशन लोग नहीं है। दूसरा सपोर्टिव लोग नहीं है, सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं है। जो 7 साल हमने काम किया उसमें हमें गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं किया। जो भी काम किया स्टेप बाय स्टेप अपने आप आता गया, हम लोग करते गए। इसी तरीके से हमारा पूरा जो 7 साल की जर्नी है वो रहा। तो जब मैं नांदेड़ गया और मैंने सर का काम देखा और मैं पूछा कि सर आपने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट कैसे काम किया, तो उन्होंने बोला कि हमने थोड़ा सपोर्ट सबके लेके इसको तैयार किया। और जिस तरीके से बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और क्वालिफाई होकर आगे जा रहे हैं, तो एक वहाँ से उम्मीद, एक इंस्पिरेशन हम लोग भोपाल लेके आए और उसी का मॉडल को हम लोग यहाँ पे रिक्रिएट करेंगे भोपाल में। एक बहुत अच्छा बोर्डिंग स्कूल बना के, क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना के, और इसमें न सिर्फ भोपाल के लेकिन मध्य प्रदेश के सभी जिलों के और भारत के अन्य राज्यों से भी जो बच्चे आके पढ़ना चाहते हैं, जो सुविधा वंचित हैं, जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, ऐसे बच्चों को जो है हम लोग वहाँ पे शिक्षा देने का काम करेंगे और एक अच्छा इंसान बनाने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद। एडवोकेट निकिता सुनावले है, वकील हूँ यहाँ पे भोपाल में और रिसर्चर भी हूँ, और एक संस्था है हमारी क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट। हमारा जो काम है वो रोज़मर्रा में किस तरीके से पुलिस प्रशासन और जुडिशरी के द्वारा जो समुदाय है, खासकर जो बहुजन समुदाय है, उनका किस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन या अपराधीकरण हो रहा है, एक जातिगत तौर से उसको लेकर जो है हम काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, कोर्ट में काम है, और उसी को लेकर जो है इस न्याय व्यवस्था में किस तरीके से समुदायों को न्याय मिल सके, इसको लेकर हमारी पहल है। तो यहाँ पे जो लिखा है विमेन एम्पावरमेंट, लेकिन मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात तो करूँगी, लेकिन उसको थोड़ा अलग तरीके से करूँगी। जो मेरा पेशा है, जो मेरा काम है, जो एक कानूनी ढांचे में, जस्टिस सिस्टम में फिट आता है, उसमें महिलाओं की क्या परिस्थिति है, और खासकर जिनको हम बहुजन महिलाएं कहते हैं, या जिनमें जो घुमंतु, जो विमुक्त घुमंतु है, या जिनको डीनोटिफाइड ट्राइब्स भी कहा जाता है, उन समुदायों की महिलाओं की क्या परिस्थिति है, और उसको लेकर हमको किस तरीके से विचार करना है और क्यों विचार करना है, इसको लेकर थोड़ी बातचीत करना चाहूँगी। तो जैसे मैंने कहा कि हमने जो ये काम है यहाँ पे भोपाल में, मैंने 2019 में शुरू किया, और जब मैंने शुरू किया तब यही पे भोपाल में, काफ़ी दूर नहीं है यहाँ से, जो भोपाल से होंगे जानते होंगे, यहाँ पे गांधी नगर क्षेत्र है। तो वहाँ पे 2017 में एक समुदाय है जिनका नाम है पारधी, जो घुमंतु जाति में आते हैं। उनकी, उस समुदाय की एक महिला ने बार बार पुलिस प्रताड़ना के कारण जो है आत्महत्या कर ली, और जो FIR है वो पुलिस वालों में दर्ज नहीं हो रही थी। तो यहाँ के सारे जो समुदाय के लोग हैं वो एक साथ मिलकर जो है हाईकोर्ट गए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक बहुत दिलचस्प चीज़ हुई कि ये जो महिला है, इसके साथ ये हिंसा हुई, इसकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन जो पुलिस वाले हैं, उनके वकीलों ने कोर्ट में एक बात कही। उन्होंने कहा कि
देखिए ये जो महिला है ये झूठ बोल रही है, और ये झूठ इसीलिए बोल रही है क्योंकि ये एक समुदाय है जो आदतन अपराधी है, जिनको जो है कानूनी तौर से हैबिचुअल ऑफेंडर्स कहते हैं। ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो है इन समुदाय से आती है, तो इसीलिए आप देखिए इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये झूठ बोल रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि देखिए जिस महिला की मृत्यु हुई वो तो थी विक्टिम इस सिचुएशन में, वो पीड़ित थी, लेकिन जो कोर्ट है, कोर्ट ने क्या कहा कि अच्छा देखिए हैबिचुअल ऑफेंडर है तो हमको तो इनका रिकॉर्ड मंगवाना पड़ेगा। तो उन्होंने उनका रिकॉर्ड मंगवाया। रिकॉर्ड में नजर आया कि बहुत सारे केस थे जिसमें वो कोर्ट से बरी हो गई थी, उनको दोषी नहीं माना गया। कुछ ऐसे केस थे जो पेंडिंग थे, और फिर जो है ये केस आगे बढ़ा कोर्ट में, और कोर्ट ने पाया कि जो पुलिस वाले थे इन्होंने सही में जो है उस पर प्रताड़ना की थी, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की। तो इसीलिए फिर उसने सीबीआई की जांच शुरू हुई। तो एक बात है, लेकिन मेरे ध्यान में जो है ये किस्सा बहुत सालों तक रहा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जिसके साथ हिंसा हुई है उसको आप हैबिचुअल ऑफेंडर बोलकर जो है उसके खिलाफ जो हिंसा हुई है उसको नकार रहे हैं। तो फिर इस पर हमने सोच विचार शुरू किया, इस पर अध्ययन शुरू किया कि ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो अभी हम वकालत में भी देखते हैं, जो पुलिस प्रशासन से है वो भी जानते होंगे कि रोजमर्रा में जो है इसका इस्तेमाल होता है। तो ये इसका इतिहास कहाँ है और ये कहाँ से आ रहा है, और ये जो बहुजन समुदाय है उनसे ये जुड़ा हुआ किस तरीके से है। तो ये जो अध्ययन है ये हमको लेकर गया 1871 में 1871, जब जो है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट नाम का एक कानून था वो लागू हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि करीब 200 से 250 300 समुदाय है जिनको क्रिमिनल्स बाय बर्थ, ये कहा गया कि जन्मजात अपराधी है और ये पैदाइशी अपराधी है, और जिसको बोलते हैं हेरिडिटरी क्रिमिनल्स, कि ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इनके यहाँ पे जो है अपराध होता है, और इस समुदाय में अगर कोई भी बच्चा पैदा हुआ तो वो अपराधी ही पैदा होगा। उसमें बहुत अलग अलग समुदाय, जो अगर हम देखें जो डोम समुदाय है उड़ीसा में वो भी इस कैटेगरी में थे। अगर आप तेलंगाना की तरफ देखें तो जिनको कहते हैं माडिगा, वो भी इस कैटेगरी में, उनको क्रिमिनल ट्राइब्स की कैटेगरी में डाला गया था। महाराष्ट्र में पारधी है, कंजर है, नट, ऐसे बहुत सारे समुदाय जो है इस कैटेगरी में थे। अब जो है इस कैटेगरी में आपको डाल दिया, तो अब ये है कि भाई आपने चोरी की हो ना की हो, आप पे जो है ये अपराधी होने का ठप्पा तो लग गया। तो इससे क्या है कि बहुत सारी जो है इसमें चीजें हुई कि लोगों को फिर एक कैंप में डाला गया, उनके ऊपर बड़ी निगरानी रखी गई, उनको रोज आने जाने के लिए भी अगर वहां से अपने गांव से बाहर निकलना चाहते तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती, रोज आपको कड़ी पुलिस निगरानी में रखा गया। तो जब भारत आजाद हो रहा था और जब आजादी के समय जो है एक असेंबली बनी जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, एक संविधान बनाने के लिए एक कमेटी की स्थापना की गई। उस कमेटी में जो है इसकी चर्चा हुई कि अच्छा अब देखिए हम ये कानून तो है, ये ब्रिटिश काल का बना हुआ कानून है, अब हम आजाद हो रहे हैं तो अब हम इस कानून का क्या करें। तो बहुत दिलचस्प बात है कि जो असेंबली है उसमें भी इसको लेकर बहुत विरोध हुआ कि भाई ये कानून तो हटाना नहीं चाहिए। जो जितने भी लीडर थे उस समय में, खैर बाद में उनकी इसको लेकर उनका भी जो है ओपिनियन चेंज हुआ था, लेकिन बाबा साहेब का भी ये मानना था कि ये कानून नहीं हटना चाहिए। बस एक ही व्यक्ति के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनका नाम था एच.जे. खांडेकर, जो भी दलित समुदाय से आते थे, वो बस एकमात्र थे जिन्होंने कहा कि ये कानून जो है हटना चाहिए, जो समुदाय है जिनके साथ ये हिंसा हो रही है खत्म होनी चाहिए। लेकिन वो कानून नहीं हटा आज़ादी के 5 साल बाद तक भी। और जब हटाया गया 1952 में, 1952 में, तब इस शर्त पे हटाया गया कि अब हम जो इसको है हैबिचुअल ऑफेंडर का जो कानून है उसके साथ रिप्लेस करेंगे। तो ये अगर हटा रहे हैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट तो उसमें ये कानून जो है हम जोड़ देंगे, तो अब जो क्रिमिनल ट्राइब्स थे उनको हम हैबिचुअल ऑफेंडर बोलेंगे। यहाँ पे लोगों ने राउडी शब्द सुना है, राउडी, हिस्ट्री शीटर, गुंडा। तो जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उनको गुंडा भी बोलते हैं
उस जिसको हिस्ट्री शीट कहते हैं कि अच्छा भाई कौन लोग हैं ये, किन किन से बात करते हैं, कैसे दिखते हैं, इनके घर में कौन कौन है, ये रोज किससे मिलते हैं। रोज एक सुबह से उठकर आदमी जो भी काम करता है वो सारी जानकारी जो है पुलिस थाने में होती है। तो अब जो है ये कानून लागू हो गया 1952 में, हम हैं 2024 में, लेकिन जो हम वकीलों के तौर पे भी देखते हैं कि रोजमर्रा में ये कानून लागू होते हैं। हमारे भोपाल में जो पारधी समुदाय है, अगर उनके घर में शादी हो तो शादी का पहला कार्ड जो है पुलिस थाने में देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पुलिस से परमिशन नहीं लेंगे और अगर ऐसी भीड़ इकट्ठा होगी शादी में तो ये माना जाएगा कि अगर इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं इस जाति के, तो मतलब ये लोग क्राइम कमिट करने वाले हैं। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिसमें दूल्हा दुल्हन और पूरी बारात को पुलिस पकड़ के ले गई है। तो इतना ही है कि लोगों को पुलिस परमिशन लेनी पड़ती है। जो बच्चे हैं उस समुदाय के, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनको पुलिस उठा लेती है। वो तो सिर्फ जेल में ही, जो हम जब सोचते हैं कि किसी को पुलिस पकड़ती है तब वो जेल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, शादी भी नहीं हो पा रही है बिना पुलिस परमिशन के। तो ये जो पूरा ढांचा है उसमें महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो पूरी कहानी है मैंने महिलाओं से शुरू की और आज का विषय भी है महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। तो इसमें जो महिला है उनके साथ क्या हो रहा है ये भी समझने की जरूरत है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो रोजमर्रा में जब हम सोचते हैं कि पुलिस क्या करती है ना, तो कुछ काफी जरूरी काम है कि अगर कोई चोरी कर रहा है, किसी के साथ किसी तरीके की हिंसा हो रही है तो पुलिस उसको रोकती है। लेकिन जब हम कोर्ट जाते थे, हम जब वकील है तो रोज हमारा कोर्ट आना जाना होता है, हम देखते थे कि एक तरीके की केस है वो दिन में 10 बार लगते हैं, एक्साइज एक्ट जिसको आबकारी कानून बोलते हैं उसके केस। तो हमने देखा क्या है आबकारी कानून, और ये जो है क्योंकि हम रिसर्चर भी है तो हमने कहा चलिए पुलिस का डेटा देखते हैं। तो हमने पुलिस का जो है डेटा देखा, पिछले 5 सालों का मध्य प्रदेश पुलिस का जो FIR जो पुलिस कंप्लेंट है उसको जो दर्ज करते हैं उसकी हमने स्टडी की, जो गिरफ्तारी करते हैं उसकी हमने स्टडी की। तो उससे कुछ बहुत दिलचस्प चीजें निकल कर आई कि जो केस बन रहे हैं वो, अब शराब तो बहुत सारी तरीके की होती है, लोग अलग अलग तरीके की शराब बनाते हैं, लेकिन जो 95% केस है वो एक ही तरीके के थे जिसको महुआ बोलते हैं, जो कच्ची शराब। वो कच्ची शराब जो यहाँ के आदिवासी, घुमंतू, दलित समुदाय ऐतिहासिक तौर से बनाते हैं उसका अपराधीकरण हो रहा है, उसके लिए केस बना रहे हैं। और वो भी खासकर महिलाओं के, कि ये जो समुदाय की महिलाएं हैं उनको जो पूरे देश में जितनी महिलाओं को नहीं गिरफ्तार करते हैं वो एक कानून के लिए, कानून के अंतर्गत अलग अलग जो घुमंतू समुदाय है उनकी महिलाओं को गिरफ्तार करते हैं। अच्छा, जब इनको गिरफ्तार करते हैं तो इससे हमारा क्या लेना देना है ना, हमको ये समझना क्यों जरूरी है। तो हमने देखा कि ये जो महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको आप सिंगल मदर बोलते हैं, या फिर जो उनके परिवार में जो है वही कमाने वाली है, उनके ऊपर एक महिला के ऊपर 20 से 25 केस कम से कम लगे हैं। और जो शराब भी, अगर आप बोलेंगे कि शराब बेचना गलत है, शराब पीना गलत है, अगर हम ये भी माने तो हम देखें कि कितनी लीटर शराब है, कि वो मोहल्ले में बांट रहे हैं या अपने पूरे शहर में बांट रहे हैं। तो हमने वो भी, उसका भी अध्ययन किया, तो उसमें हमने देखा कि 1 लीटर 2 लीटर ये कहीं घर में बच्चा पैदा हुआ तो आपकी जो देवी है आप उसको देते हैं, या आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई तो उसके लिए जो है आप पारंपरिक तौर से जो महुआ बनाते हैं, इस तरीके के महुए के जो है केसेस लोगों पे बनाए जा रहे थे। अच्छा, आप जो 20 से 25 केस इन महिलाओं पे लगे उससे उनका क्या हो रहा है। तो हमने जो है महिलाओं से बात भी की, तो उन महिलाओं ने हमको बताया कि हमको उठा के ले जाते हैं थाने में, हमारे साथ जो है मार पिटाई होती है। बहुत सारी महिलाओं ने ये भी बोला कि हमारे साथ जो है अलग अलग तरीके की भी छेड़छाड़ होती है। जो समुदाय भी है, जो रोजमर्रा में भी लोग जो है हमको बोलते हैं कि ये क्रिमिनल महिलाएं हैं। हमारे बच्चों को भी इस नजरिए से देखा जाता है कि देखिए इनकी माँ क्रिमिनल है। और
बहुत सारे जो समुदाय की लड़कियां हैं उनको स्कूल छोड़ना पड़ा है, या फिर जो है उनकी बचपन में ही शादी करा दी गई है ताकि उनके साथ जो है पुलिस प्रताड़ना ना हो, कि अगर इनकी शादी हो जाए तो ये कहीं रहेंगी और इनके साथ पुलिस प्रताड़ना नहीं हो। जब आप स्कूल जाते हैं तब स्कूल में आपके साथ भेदभाव होता है, क्योंकि लोग आपको बोलेंगे कि देखिए आप जो है क्रिमिनल समुदाय से आते हैं। तो जो लड़कियां हैं वो लड़कियां पढ़ नहीं पा रही है क्योंकि स्कूल में भी उनके साथ जो है इस तरीके का भेदभाव हो रहा है। अगर वो काम करती है, और बहुत सारी जो लड़कियां हैं इन समुदायों की वो कचरा बीनने का काम करती है, जिसको बोलते हैं वेस्ट पिकिंग। तो जब वेस्ट पिकिंग के काम के लिए जाते हैं तो बहुत सारे जो है जो समुदाय में आदमी है या जो बहुत सारे और भी तरीके के लोग हैं उनके साथ जो है अलग अलग तरीके की सेक्सुअल वायलेंस, शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, इस तरीके भी बच्चों के साथ जो है इंसिडेंट रहे हैं। हमने जो है जब देखा कि जब इन महिलाओं पे केस लगते हैं तब कोर्ट में इनके साथ क्या होता है, तब हम जब कोर्ट में गए तब हमने देखा कि जो बेल के दौरान भी, जब बेल मतलब किसी को पता है क्या होता है? कोई हाँ बोला? हाँ, बेल मतलब देखिए मान लीजिए मुझे किसी पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया, अब मुझे जेल से निकलना है तो मुझे कोर्ट जाकर जो है कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करना पड़ेगा ये बोलने के लिए कि मुझे छोड़ दीजिए, और जो जज है वो मेरी याचिका को पढ़ेगा और ये फिर निर्णय लेगा कि मुझे छोड़ना चाहिए या नहीं। अगर छोड़ना चाहिए तो क्यों छोड़ना चाहिए, अगर नहीं छोड़ना है तो क्यों नहीं छोड़ना है, इसका कारण बताना पड़ता है। लेकिन इन महिलाओं के केस में जो सारे कारण थे बस एक ही सेंटेंस था, वो सारे ऑर्डर में लिखा था कि देखिए ये आदतन अपराधी है तो हम इनको जो है जमानत नहीं दे सकते, इनको जेल में रखिए, और अगर इनको छोड़ रहे हैं तो उनको जो है 50,000 या 1 लाख तक का पैसा देना पड़ेगा, या 1 लाख से भी ज़्यादा। ये इस समुदाय में लोग जो है उनके दिन की कमाई होती है 50 से 100 रुपए। आप बताइए जिस इंसान को 50 से 100 वो दिन का कमाता है और दिन का खाता है वो 1 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? तो लोगों ने जेल से छूटने के लिए अपने घर गिरवी रखे हैं, लोगों से बहुत सारा लोन लिया है, और बहुत सारी महिलाओं को फिर काम करना पड़ता है, और जिस काम को आप क्राइम नहीं मानेंगे उस तरीके का भी काम करना पड़ता है क्योंकि आपको कर्जा चुकाना है, वरना आप जो है घर का रोज का कमाना खाना नहीं कर पाएंगे। तो ये इससे भी दिख रहा है कि जो महिलाएं हैं और ये जो इन समुदाय के लोग हैं कि उनको जो है कुछ इलीगल काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि जो है आपको कोई काम का साधन नहीं मिल रहा है, आपको जो है लोन उठाना पड़ रहा है, आपको जेल जाना पड़ रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो है रिसर्च कह रहा है, और ये जो रिसर्च का जो सोर्स है, जो पुलिस व्यवस्था है, जो यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके खुद के आंकड़े हैं। तो इसको हमको समझना ये बहुत ज़रूरी है कि जो न्याय व्यवस्था में है, हम जब कहते हैं महिला, तब महिला में भी है जो बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, जिसको जैसे बाबा साहेब ने कहा था कि जो जाति व्यवस्था है वो एक सिस्टम है ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी। वैसे ही जो पितृसत्ता है, जिसको पेट्रियार्की बोलते हैं, जिससे जिनसे महिलाओं के साथ शोषण होता है, हिंसा होती है, उसमें भी लेवल होता है जिसको आप बोल सकते हैं ग्रेडेड पेट्रियार्की, है ना, कि अलग अलग जो महिलाएं हैं उनके साथ किस तरीके से जो है व्यवहार होता है। हम जब कोर्ट जाते हैं और हम जब देखते हैं कि जो सवर्ण महिलाएं हैं जब वो कोर्ट जाती हैं, जब वो पुलिस थाने जाती हैं, तब उनके साथ जो व्यवहार होता है, उनको जिस नज़रिए से देखा जाता है, वो जो है बहुजन, दलित, आदिवासी, घुमंतू, इन समुदायों की महिलाओं से बहुत अलग तरीके से देखा जाता है। इन समुदायों की महिलाओं को महिला ही नहीं, इंसान के तौर पर भी नहीं देखा जाता। अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी राइटिंग है उसमें ये कहते हैं कि जो महिलाएं हैं ये एक्चुअली महिलाएं नहीं, ये गैंग लीडर है, ये जो क्रिमिनल गैंग की लीडर है। और ये बहुत सारी पुरानी बातें हैं, मतलब अगर हम देखें तो इसका इतिहास जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन मनुस्मृति जो थी वो इतने सालों पहले थी, लेकिन आज की तारीख में भी जिस तरीके से कानून बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से कानून का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें जो मनुस्मृति में कुछ महिलाओं की जो धारणा बनाई गई थी, उसी धारणा को जो है हम बनते हुए देखते हैं। तो जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तब महिलाओं पे और खासकर
जो पिछड़े समुदाय की जो उत्पीड़न जाति से जो महिलाएं आती है उनके ऊपर किस तरीके की हिंसा हो रही है, उनके साथ उनकी क्या परिस्थिति है, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम वो नहीं समझेंगे तब तक उन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमको क्या करना है, उनकी हिंसा को किस तरीके से चुनौती देनी है, ये हम नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की चर्चा में और आगे भी जो हम सब है वो महिलाओं के साथ जो अलग अलग महिलाएं हैं, अलग अलग समुदाय की महिलाएं हैं, उनका क्या इतिहास है, उनका क्या अनुभव है, उनके क्या मुद्दे हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए हम महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को समझेंगे और उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Eros is the word in Greek language for sky. It is a movement which focuses on arts, cultural programs, and sports and games. So I would like to now request Dr. Arif Kumar sir to enlighten us on how to celebrate the day. सभी को जय भीम। जय भीम। At the very outset, I thank my close friend Mr. Praveen Godkhade for inviting me to this wonderful meeting, and I also thank all of you for spending your precious Sunday in this auditorium, which is going to change your lives, hopefully. महापुरुषों को सम्मान करते हुए एंड आप सभी लोगों को अभिनंदन करते हुए मैं आज हैदराबाद से यहाँ आया हूँ स्वेरो मूवमेंट के बारे में आपको बताने के लिए। और उससे पहले क्यों ये स्वेरो का शब्द कहाँ से आया, इसका मीनिंग क्या है, वो क्या अचीव करना चाहता है आने वाले दिनों में, वो चीज़ के बारे में आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ। उससे पहले कई लोगों को ये शक हमेशा रहता है कि ये आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर कैसे एजुकेशन फील्ड में गया, और एजुकेशन फील्ड में जाने के बाद फिर क्यों इस्तीफ़ा दिया, और इस्तीफ़ा देने के बाद फिर क्यों राजनीति में आ गया। तो उतना चीज़ों के बारे में मैं बात करने के लिए यहाँ समय नहीं, लेकिन मैं ज़रूर ये बताऊँगा, मैं भी आप लोगों के जैसा एक स्टूडेंट था। मेरा माँ भी एक मजदूर थी आंध्र प्रदेश स्टेट में। वो हर दिन 10 साल तक मजदूर के लिए खेतों में मजदूरी करने के लिए जाती थी। लेकिन दो शिक्षक ने, जैसा प्रवीण गोडखड़े जी ने आज आप सभी लोगों को यहाँ लाया, उस दिनों में 2 शिक्षकों ने मेरे माता जी को वहाँ से आज़ादी करा के स्कूल में भर्ती करवाया। वहाँ से लेके मेरे माता जी ने 10वीं कक्षा पढ़ी, वहाँ से फिर टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट की। टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो हेडमिस्ट्रेस बनी और हेडमिस्ट्रेस बन के रिटायर हो गई। और हमारा फैमिली में मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, इंडियन पुलिस सर्विस, और मेरे भाई प्रोफेसर है और मेरा बहन जो है डॉक्टर है। तो एक मजदूर के खानदान से एक लड़की स्कूल जाती है और शिक्षित बनती है, और उसके बाद वो एक आईपीएस ऑफिसर का माँ बनती है, हेडमिस्ट्रेस बनती है, उसके बाद आईपीएस ऑफिसर का माँ बनती है और डॉक्टर और प्रोफेसर का माँ बनती है। ये कहानी जो है अपने समाज में हर खानदान में रेप्लिकेट होना चाहिए, इसीलिए मैंने आईपीएस का थोड़ा रेस्ट दे दिया। तो मैं एक जिला का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहा हूँ। निकिता जी पुलिस वालों के बारे में बहुत सारी चीज़ बताती, अच्छी चीज़ में थोड़ा दर्द भरी चीज़। तो मैं पुलिस का नौकरी एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एडिशनल
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी रहा। मैं 17 साल का नौकरी के बाद बाबा साहब, इससे पहले भी स्टूडेंट लाइफ में भी, जैसा अपना साइंटिस्ट साहब ने बताया कि हमारा यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारा शोषण होते थे, ऑपरेशन, अटैक्स होते थे अनुसूचित जातियों के ऊपर, जनजातियों के ऊपर। तो हमारे लिए अलग सा यूनिवर्सिटीज़ में भी 1984 में, 1982 में, 1986 में हमारे ऊपर भी बहुत अटैक होते थे, अलग सा डाइनिंग हॉल होते थे, अलग सा डॉर्मेटरीज होते थे। बहुत दुख लगता था, बहुत बुरा लगता था। तब हमको बाबा साहब अम्बेडकर का विचारधारा परिचय हो गया। तब से हम बहुत शानदार रूप में हम वो ऑपरेशन शोषण के खिलाफ हम बहुत बड़ा संघर्ष किए। वो होने के बाद हम रात भर बहुत मेहनत किए, 16 घंटे 18 घंटे पढ़ना पड़ा, क्योंकि हम तेलुगु मीडियम हमारा मातृभाषा, और तेलुगु मीडियम से इंग्लिश मीडियम आया, इंग्लिश मीडियम से फिर पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपेयर होके हम तीसरा अटेम्प्ट में हम IPS ऑफिसर बन गए, दूसरा अटेम्प्ट में। और फिर साइंटिस्ट के जैसा मैं भी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं भी एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए मैं भी एक ARS का साइंटिस्ट बन गया था। लेकिन तब हमको लगा हमारे सीनियर्स पूरा IPS ऑफिसर्स बन गए, IAS ऑफिसर बन गए। मैंने सोचा एक बार ये भी ट्राई किया जाए। तो साइंटिस्ट का जॉब तो था मेरे पास, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स मेरा पूसा IARI और कई सारे इंस्टीट्यूट्स में अभी सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा एक बार ये भी ट्राई किया जाए। तो दिन रात पढ़े और उसके बाद कामयाब भी बन गए, तो IPS ऑफिसर बन गए। लकीली आंध्र प्रदेश कैडर भी मिल गए। तो वो होने के बाद मैंने 17 साल का IPS नौकरी के बाद मैंने फिर एक बार स्टूडेंट बनने के लिए मन कर रहा था, क्योंकि जैसा बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, तो बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। मैंने सोचा बाबा साहब जिस रास्ता को हमने बताया उसी रास्ता में चलने के लिए कम से कम प्रयास करें। हमेशा AK-47 ग्लॉक पिस्टल मुकदमे ये पूरा चीज़ों के थोड़े से दूर रह के क्या हम कोई नया रास्ता देख सकते क्या। तो इसीलिए मैंने फिर बहुत मेहनत करके 2011 में मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई किया, और 4 यूनिवर्सिटीज़ में मेरे को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अप्लाई किया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और कोलंबिया जिसने बाबा साहब ने पढ़ा है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट पढ़ा है बाबा साहब ने, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अप्लाई किया। तो मेरे को 2 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आ गया, एक तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन आ गया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन आ गया। तो मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चुन लिया। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैं मास्टर्स डिग्री करने के बाद फिर वापस अपना मातृभूमि यानी कि इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद फिर पुलिस का वर्दी पढ़ना नहीं चाहता था मैं, इसीलिए मैंने जैसा मेरे माँ ने एक मजदूर के फैमिली से, मजदूर के खानदान से एक एडमिनिस्ट्रेटर बनी, एक IPS ऑफिसर का माँ बनी। तो मेरे माँ जैसा लड़कियाँ और लड़के ये देश में करोड़ों लोग में है। हमारा समाज में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 10वीं कक्षा में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 12वीं कक्षा में उसका शादी हो जाता है, या ग्रेजुएशन से पहले कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाते हैं और माँ बन जाती है। तो ऐसे बच्चों का खाब को हिफाजत करना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। यही बाबा साहब चाहते थे। मार्च 18 आगरा में बाबा साहब का आंखों में आंसू आ गए थे। यही चीज़ हमको इतिहास में बताया जाता है कि बाबा साहब ने ये बहुत दुख हो रहा था कि जिस संघर्ष जिसने किया, उस संघर्ष का फल जिसने ले लिया, वो जो ले लिया वो कामयाब बन गए बाबा साहब का मार्गदर्शन की वजह से, बाबा साहब का कुर्बानी की वजह से। वो लोग सिर्फ अपना खानदान का देखभाल करने में बहुत बिजी हो गए, लेकिन वो अपना समाज के बारे में, समाज का देखभाल के बारे में, समाज का भविष्य के बारे में भूल गए। तो हमने वो गलती नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने अपना वर्दी और पूरा वेपन्स पूरा बगल में रख के मैंने सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण विभाग में हजारों स्कूल्स है, वो स्कूल्स का सेक्रेटरी बन गया मैंने गवर्नमेंट नौकरी में। IPS ऑफिसर
started working as IAS ऑफिसर। तो मैंने उसमें 10 साल काम किया। वो 10 साल में मेरे को पहले महीने में बहुत बड़ा चुनौती मिला। तो पहला चुनौती ये था, मैं किसी भी स्कूल जाऊं और लड़की या लड़का से पूछूं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपका माँ बाप क्या करते हैं, तो वो लोग बहुत डर जाते थे, बहुत डरते थे कि जो इंग्लिश में बात करता उससे देखते डरते थे, जो अच्छा ड्रेस पहन के आता उससे देख कर डरते थे, जो कार में आएगा उससे देख कर डरते थे। तो ये डर जो है बहुत बड़ा चीज है। डर जो है आपका क्रिएटिविटी को किल करती है। डर जो है आपका पोटेंशियल को पूरा खत्म कर देती है, मिटा देती है। तो डर को हम निकलना चाहते थे, तो कैसे निकलना, वो भी बहुत बड़ा चुनौती है। तो आप डर मत डरो बोले तो लोग डरना बंद करते, क्या नहीं करते। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम बहुत आके फिर वापस आके बहुत रिसर्च किए। तो पहला चीज हम ये किया कि स्कूल्स में दलित का शब्द जो है उसको बैन किया। तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है ये। तो लोग क्यों हम अपने आप हमको दलित बुला के, दलित का नाम लगा के अपना अंदर जो शक्ति है उसको हम मिटा रहे। तो इसीलिए हमने स्कूल में सब टीचर्स को बोला, ये बच्चों को आज से आप like anyone else, they can become doctors, they can become professors, they can become officers, they can become lawyers, they can become scientists. So when they can become everything, when they have the potential, why do you call them Dalit? Why do you call broken? तो मैंने बोला गूगल, आपके पास अभी मोबाइल फोन से आप भी देख सकते हैं, go to Google images and then type Dalits in India। अब एक बार ट्राई कीजिए, देख दिया। और जो लड़की एक लड़की का उम्र था 13 साल और लड़का का उम्र था 16 साल। ये दोनों का हाथ में बाबा साहब का मूर्ति, वो दोनों का हाथ में लगा के हमने वो लोगों को दोनों को एवरेस्ट को भेज दिया। तो जाने से पहले अप्रैल 18 तारीख 2014 18 लोगों का मौत हो गया। 18 लोगों का मौत 5 मिनट में हो गए। तो मैंने ये बंदों को पूछा, यार वापस आ जाओ, अगर तुम लोग तो कुछ हो गए तो अच्छा नहीं दिखता, तुम लोग बहुत छोटे हैं। तो ये लोग बोले, साहब बाबा साहब का मूर्ति हमारा साथ है, हम वापस नहीं आने वाले हैं। बाबा साहब कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, तो हम भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। हम एवरेस्ट के ऊपर जाके बाबा साहब का मूर्ति वहां लगा के फिर वापस आते हैं। अगर वहां मर गए तभी कोई प्रॉब्लम है, पहले वहां बाबा साहब का मूर्ति लगाना है। तो ये लड़की और लड़का दोनों 52 दिन के बाद, 12 दिन के ट्रेनिंग के बाद अप्रैल 18 से लेकर मार्च में 25 के दिन सुबह 7:30 बजे बलावत पूर्णा और आनंद कुमार, one scheduled caste, one scheduled tribe. These two children have placed their feet on Mount Everest, peak of Mount Everest. अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लिखो ये सोचो। अभी तक ये दुनिया का इतिहास में अभी तक 13 साल के उम्र में कोई भी लड़की एवरेस्ट पे अपना कदम नहीं लगाई। इट इज ओनली बलावत पूर्णा। वो लड़की तिरंगा के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर का भी मूर्ति लगाई वहां पे। हम क्या साबित करना चाहते हैं? हम ये साबित करना चाहते हैं कि अभी साइंटिस्ट साहब ने बताया, हम महोल जाते हैं, तो सागर जाते हैं, तो उज्जैन जाते हैं, इंदौर जाते हैं, महाराष्ट्र में भी ये प्रॉब्लम है, तेलंगाना में भी है, आंध्र में है। हमारा गांव से अलग है। ये अलग क्या होता है? कौन अलग कर दिया? हमारा गांव से अलग है। उस गांव में जो अलग हुआ तो गांव में गरीबी है, शोषण है, नादानी है और सब है। और महिलाओं को ऊपर और ज्यादा है। अभी एडवोकेट निकिता सोनेवाल ने बताया, उनको बहुत दुख हो रहा है। जितने भी जातियों का बारे में मैडम ने बताया, वो सभी लोग अनुसूचित जातियों के लिस्ट में आते हैं। पारदी हो या टोटी हो, जो भी जाति बोलते हैं, मैडम ने बताया, वो सभी लोग अपने समाज के हैं। लेकिन हर औरत के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। क्यों?
अमीर लोगों के ऊपर क्यों ना किया जाता? कभी सोचे हम क्यों पुलिस वालों के मन में क्या अमीर लोग क्या बोलते हैं क्राइम नहीं करते करके है? क्यों है? क्यों गरीब लोग जो बोलते क्या पार्टी लोग अगर मान लीजिए एक क्राइम भी किया समझिए या ये तो समझिए तो वो लोग के ऊपर क्या पुलिस वाले बार बार दर्ज करते? बैंक में कितने लोग ये लोग राशि जाते बैंक में फ्रॉड करते लाखों करोड़ों रुपए 20 लाख करोड़ रुपए में बैंक में फ्रॉड होते हैं। कितने आंसर जाती है इसमें? एक भी नहीं रहता मगर कोई पुलिस वाला आके इसका ऊपर मुकदमा नहीं करते। लेकिन गरीब लोग छोटी सी अगर जुर्म पेट भरने के लिए छोटी सी जुर्म करे तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होते। अब मैं पुलिस ऑफिसर के होने के नाते मैं भी कभी जेल गया, ऑफिसर बन के जेल गया, मैं भी कभी देखा कहीं जेल में मैं सुपरडेंट से बात किया यार ये कौन से जात के होते हैं? आप ध्यान से सुनिए जी, जेल में जितने भी कैद होते हैं और कई भी लोगों को मैं ऑफिसर से पूछता हूँ यार इसमें कौन से जाति होते हैं? सर आप नहीं जानते, लेकिन सच ये है कि उसमें बहुत सारे लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और मुसलमान होते हैं, अमीर लोग नहीं होते, अपर कास्ट के लोग बहुत कम होते हैं। अगर वो आए तो भी उसको जेल में आते ही उसका हार्ट अटैक आते हैं, हार्ट अटैक आते ही वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बोलता है उसको हॉस्पिटल में भर्ती करो, जेल में नहीं। तो ये साजिश है, ये हकीकत है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा स्वेरोस मूवमेंट शुरू करें। तो इसीलिए हमने नाम दलित के नाम पे स्वेरोस आ गया। ये स्वेरोस मूवमेंट 4 चीजों पे काम करती है। एक तो शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य हेल्थ, तीसरा स्वावलंबन यानी कि सेल्फ एम्पावरमेंट, चौथा स्वाभिमान सेल्फ रेस्पेक्ट। ये 4 चीजों के ऊपर करते हैं। हम कौन सा भी संगठन के साथ काम करते हैं। आज सम्यक या सविता एजुकेशन सोसाइटी है, प्रवीण गोरखड़े जी है, कल अपना साइंटिस्ट साहब है बुद्धेश्वर साहब है और अम्बेडकर वाली मिशन साहब है, कदम साहब है। ये सभी लोगों के साथ हम काम करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। हमने प्रवीण से कनेक्ट किया, हम इससे पहले नहीं जानते थे प्रवीण को, लेकिन हम अच्छा दोस्त बन गए और ऐसा स्वेरोस नेटवर्क वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली एक्सपैंडिंग नेटवर्क इन द एंटायर कंट्री। हमारा नॉर्थ इंडियन कोऑर्डिनेटर जसवंत जी भी है, एक बार खड़ा होगा। हमारा नॉर्थ इंडियन कोऑर्डिनेटर नौजवान है जसवंत जी। पिछले जून महीने में जसवंत जी ने एक बहुत बड़ा मीटिंग लगाया, 3000 से 4000 लोग आए, अच्छे IAS ऑफिसर्स, यंगस्टर्स फ्रॉम आवर कम्युनिटी, हमारे समाज से जितने भी IAS ऑफिसर यंग ऑफिसर्स है, जिसने सिविल सर्विसेज इंटरव्यू में 3 बार 4 बार अच्छा मेहनत करके IAS बन गए, फर्स्ट रैंक ले लिए, सेकंड रैंक ले लिए, 15 रैंक ले लिए। वो सभी लोगों को अपना समाज को परिचय किया। अमीर और गरीब के बीच में फर्क क्या है जानते हैं आपको? अमीर लोगों को दौलत का मालूम होता है, उसका एक मार्गदर्शन होता है, उसका एक नेटवर्क होता है। वो हमेशा ऐसे मौके बहुत सारे होते हैं, शादी होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, सब लोग मिल जाते हैं, उसमें अंकल आंटी सब लोग आते हैं, पूरा अमीर लोग। और गरीब समाज में ऐसा नहीं होता है। तो शिक्षा के अलावा कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है। तो ऐसी चीज़ों का यही चीज़ हम करते हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को, खास करके बच्चों को, मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ, मोबाइल फ़ोन थोड़ी देर के लिए बंद करना हर दिन, और डिजिटल डाइटिंग बोलते हैं इसको। तो मोबाइल फ़ोन, टीवी सब लोगों को बंद करके हम पुस्तक पढ़ना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए, अच्छे किताब पढ़ना चाहिए। जैसा आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, बुद्धेश्वर का पास जाइए। बुद्धेश्वर साहब फिजिकली नहीं आ सकेगा, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ऐसा चीज़ है कि टेक्नोलॉजी में जूम कॉल्स है। बुद्धेश्वर साहब से एक जूम कॉल ले लो, एक फेसबुक लाइव ले लो, नहीं तो यूट्यूब पर सेशन ले लेना, लेकिन कौन सा भी एक कर लेना, नहीं तो ट्विटर स्पेस कर लेना। तो इट डजंट हैव टू कम टू योर होम, बट यू कैन वॉच हिम स्पीकिंग समथिंग गुड फॉर योर लाइफ। सिमिलरली निकिता जी है, तो लीगल फील्ड में जितने भी अपॉर्चुनिटीज है, यू कैन डू सेम थिंग। बट बिफोर यू डू समथिंग, बिफोर यू बिकम समथिंग, don't get into a bad company. That is a tragedy which is happening in our country. Most of our people, without any direction, they are falling into bad company. They are into drugs.
They are landing in police stations. They are going to rape parties. They are landing to police stations. They are wasting their time in playing mobile games. PUBG. You know PUBG? How many of you know PUBG? Please raise your hands. So they are wasting their valuable time in PUBG, WhatsApp, Facebook, and अपने दुश्मन जितने भी लोग हैं, हमारा समाज का उन्नति नहीं चाहता है, वो सभी लोग फेक न्यूज ये सोशल मीडिया साइट्स में डाल रहे, उसमें भी हम गिर जा रहे हैं. तो इसीलिए my request to you is not to get addicted to these things and then get addicted to knowledge, get addicted to book reading and read good books, form your own study groups. And then explore new knowledge, and then meet people like Buddheshwar, many officers, meet the people like Nikita. So there are so many other people in our communities, in other communities also. If they are good people, meet them, learn from them, and visit as many places as possible, and then empower yourself. And Spheros Network is going to guide the organizations like this, whoever wants to do such kind of great things, and then in future we want to expand to all states of the country, and with our energetic leader like Jaswant Singh. So we have already made a lot of progress in Uttar Pradesh and other states, particularly Delhi and Uttar Pradesh, and shortly we will also start our chapter in Bhopal and other places. So with these few words, I thank everybody. And I wish you all the very best, and then all the children, my only advice to you is that whenever you find time, in Amazon Prime there is a movie called Purna. Please watch that movie. In Amazon Prime there is a movie called Purna. So it is a 92 minutes movie. So it is produced and acted by Rahul Bose, famous Bollywood actor. So please watch that movie and you will really love it. Thank you very much. Jai Bhim, Jai Bharat. Thank you very much, sir. Sir, your magnificent presence is a beacon of hope for our future. Sir, I truly believe that, sir. As a token of our gratitude, I would like to ask Siddharth Kushre sir, Mandakini madam, and Nikhil Kushre sir to felicitate Dr. IPS Praveen Kumar sir for his contribution. Sir. To welcome Shraddha Sudhakar, Ms. Shraddha Sudhakar. महाकारुण्य बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए स्वतंत्रता और समानता की मूवमेंट में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं, रैबरों, पीरों, फकीरों एवं सूफी संतों को मेरा कोटि कोटि नमन। दोपहर की इस वेला में आप सब लोग सुबह से बैठे हैं। इधर मेरे साथ बाहर खींचो, अपनी तरफ खींचो। मंच पर विराजमान आदरणीय श्री सर, मुझे यहाँ तक लेके आने में हमारे भाई आदरणीय प्रवीण सर, दीपक कदम साहब, निकिता मैम, IPS प्रवीण सर, बुद्धेश्वर सर सहित मेरे साथ यहाँ चल करके आए इंजीनियर सुगत बोध जी, आदरणीय डॉक्टर केसरी जी सहित आप सभी साथियों को सादर जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं विशेष रूप से
ये बच्चों से निवेदन करूँगा कि आप जितनी देर यहाँ विराजमान है हॉल में उतनी देर शांत रहें। अगर यहाँ स्टाफ अगर देख रहा हो और वो आसपास में हो तो बच्चों पे हल्का सा नहीं समझाए। साथियों, सेविका का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने सुंदर और इतने विचारवान लोगों को यहाँ एकत्रित किया और फिर सबका अपना अपना जो संगठन है, वो काम करने का स्टाइल है, उस पर आपने बड़ी निश्चित रूप से अभी व्याख्यान की। मुझे भी आपने अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। हम यहाँ शांति शिक्षा विहार पर चर्चा करेंगे। शांति शिक्षा विहार मिशन स्वाभिमान सामाजिक नवनिर्माण की ओर। कोविड का समय निसंदेह बहुत खतरनाक समय था, स्वास्थ्य के लिए भी और फिर इस आंदोलन में अपने लिए। अपने से मतलब क्या कि वो लोग जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, संसाधनों से वहीन जो लोग हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत खतरनाक है। इसके अलावा सामाजिक रूप से जो लोग काम करने वाले थे, उनके लिए भी यह बंदिशों का दौर था कि जो आदमी रोज़ाना काम करता हो, रोज़ाना समाज में जाकर के मीटिंगें करता हो, रोज़ाना समाज के बीच में उठता बैठता हो, अब वो अपने दरवाजे में ही जम करके बैठा। परंतु यह मेरे लिए उपयुक्त समय था आत्ममंथन करने का और चिंतन करने का। मुझे 1999 से जब मैं 10th क्लास में था, तभी से यह संकल्प हुआ मेरे मन में कि मुझे अपना पूरा जीवन इस मिशन के लिए लगाना है। उससे लेकर के और ये लॉकडाउन तक मैं निरंतर काम करता रहा। पर लॉकडाउन का जब समय आया, तब जीवन में रुकने का अवसर मिला और उस रुकने के अवसर में बुद्धेश्वर जी से निवेदन है कि कृपया आपको जब आदरणीय सर, बुद्धेश्वर सर प्लीज, कि जीवन में वो एक इतना महत्वपूर्ण अवसर था कि मुझे क्या करना है और यह जो जीवन इस आंदोलन के लिए लगाना है, और फिर जितना समय हमने लगाया उस समय में हमने कितना खोया कितना पाया। अपने आप को आंकलन करने का सबसे बेहतरीन समय था। कोई फोन कॉल नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, अपने आप से बात करते रहे। और उस बात में ये पाया कि हमने जम्मू से लेकर के और तेलंगाना तक लगातार काम किया, पर उस काम के बाद हम हैं कहाँ? हम आज वहीं के वहीं खड़े हैं। तो फिर हमारी मीटिंगें कहाँ होगी? हमारी मीटिंगें सिर्फ सभागारों में होगी। हम जाकर के कितने लोगों से मिले? हम जाकर के खाली पढ़े लिखे लोगों से मिले, जो बिल्कुल सूटर बूटर लोग। समझ में आया कि क्या इतना ही समाज है? अब उसके बाद में मजदूर वर्ग ये चलता है पूरे देश में पैदल, दिमाग दोबारा से जिंदा कि हमें काम करने का ढंग क्या रहना चाहिए। तभी अपने मित्रों से बात की और राजस्थान सरकार ने यह अनाउंस किया कि जो व्यक्ति साइकिल पे चलता है उसको मास्क की जरूरत नहीं। और मैंने उसी आदेश का फायदा उठा करके 4100 किलोमीटर की संविधान जागृति कम यात्रा की पूरे 100 में, और राजस्थान के सबसे बैकवर्ड एरिया में मैंने काम किया। तब समझ में आया कि अभी जो हम इतनी सारी बातें करते हैं वो अभी जमीन से बहुत दूर है सर, बहुत दूर है। कितनी दूर है हम सोच नहीं सकते। और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, अभी जितना मैंने नजदीक से देखा, वो चाहे
यूपी का पूर्वांचल का क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश का ये रीवा सतना पन्ना का क्षेत्र हो, या फिर राजस्थान का ये आपका जैसलमेर बाड़मेर का जो एरिया हो, ये क्षेत्र अभी भी सुविधाओं के अभाव से वंचित है। इवन कि जम्मू है, और फिर जम्मू में भी कुछ एरिया ऐसे हैं कि जहाँ सुविधाएं अभी नहीं पहुंच पाई हैं हमारे लोगों तक। हमने फिर ये पूरा काम धाम छोड़ करके और जमीन से काम करना स्टार्ट किया, और उस जमीनी सतह पर यह समझ में आया कि 2014 के बाद, हालांकि यूं तो हजारों सालों से हमारे लोगों का मनोबल कोई ज्यादा अच्छा नहीं था, परंतु 14 के बाद संकीर्ण मानसिकता इतनी खतरनाक हुई, इतनी भयंकर हुई कि आदमी अपने आप का नाम बताने से भी कतराता है, आदमी बचता है। और फिर हमारे जो लोग हैं उनका तो मानसिक गुलामी इतनी घर कर गई कि उसका जमीर जिंदा है कि नहीं है, इस बात के लिए भी सोचना पड़ता है। आदमी पास बैठा है, पूरे दिन मुंह पे उंगली रख करके बैठा है कि मैं एक शब्द मुंह से न बोल दूं। मुझे समझ में आया कि अब राजेंद्र कुमार कि यह जो समय मिला है, बाकी का जो समय है, इतना समय तो गफलत में निकाला। मैं उसको गफलत इसलिए कहता हूं कि कभी इस संगठन में, कभी उस संगठन में, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी यहाँ गए, कभी वहां गए, परंतु वो इतना सा समझ में आया कि अब काम करना है, और काम भी जमीनी सतह से करना है। और फिर हम लगे जमीन पर लगे, तो और उस जमीन में क्या समझ में आया कि हमारा आदमी अभी मानसिक रूप से बहुत गुलाम है, इतनी अज्ञानता में जीता है कि उसे पता ही नहीं कि आपको इंग्लिश वाइन लेकर के पंचशील की याचना नहीं करनी। अगर आप इस बात रखते हो तो बात समझ में आएगी कि आपको भिक्षु को भी बिठाने के लिए किस प्रकार से घूम रही है, पृथ्वी घूमती है, टिकी हुई है। परंतु यही बात जब आप अपने 70 साल 90 साल की दादी से पूछेंगे, नानी से पूछेंगे कि नानी ये पृथ्वी किस पर टिकी हुई है, तो वह क्या बोलेगी पता है? वो कहती है कि ये पृथ्वी नाम के ऊपर टिकी हुई पृथ्वी है, घूमती घामती नहीं है। अब हम ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि अब हम अपने यूथ की बात को माने या फिर हमारे बुजुर्गों की बात को माने। अगर हम हमारी बुजुर्गों की बात को काटते हैं, क्रॉस करते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर हम ना बदतमीज कहलाते हैं। और हम अगर ये कहते हैं कि ये पृथ्वी घूम रही है, तो फिर हम वैज्ञानिक कहलाते हैं। वैज्ञानिक बनते ही घर में शाम को रोटी बंद है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी दादी और नानी के साथ बदतमीजी की कि तुम सामने बोले और तुम उसको समझा रहे। अब हम क्या करें? जब आप अध्ययन करेंगे और ज्यादा स्टडी करेंगे, ये बात समझ में आती है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक, जब आप जम्मू से पकड़ते हैं अपने आप को, और फिर जब इसी बात को बाबा साहब ने कहा कि इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार नागवंश के लोगों ने किया है, तो फिर नागवंश कहाँ है? जम्मू में एक जगह अनंतनाग है। जम्मू से आप फिर आओ मध्य प्रदेश में नागदा जिले है। जब आप आओ राजस्थान में तो फिर नागौर जिला है। जब आप आ जाओ इधर, आप नीचे की तरफ उतरो महाराष्ट्र में, तो नाग नदी है और नागपुर है नाग। उसके बाद आप दक्षिण में इस प्रकार से उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और हमने पूरी टीम के साथ एफर्ट किया। एफर्ट करने के बाद उन्हीं समाजों में से भिक्षु बना करके और उनको ढंग के मार्ग पे लगाया। जब तक हम उन्हें सही सदाचार नहीं देंगे, जब तक उन्हें सही नैतिकता नहीं देंगे, तब तक बात नहीं बढ़ेगी। एजुकेशन जरूरी है, पढ़ना मस्ट है, पर फिर पढ़े लिखे में और अनपढ़ में क्या अंतर है? कितना अंतर है? मुझे इतना सा समझ में आया कि अनपढ़ आदमी क्या वो लिया भी नाम इन्होंने महुआ पीता है, और फिर पढ़ा लिखा आदमी इंग्लिश पीता है। इससे भी ऊपर काम कर देना पड़ेगा। और अंतर देने के लिए हमें अपने में से ही कुछ आदर्श व्यक्तित्व स्थापित करने पड़ेंगे।
दूसरों की व्यवस्था इसलिए मजबूत है क्योंकि उनके पास वो अपने में से ही एक वर्ग तैयार करता है। सो कॉल्ड उसको वो पंडा कहते हैं, पुरोहित कहते हैं, और उसके प्रति बड़ी बहुत आदर का भाव रखते हैं। तो फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास ले लेकर फिर भिक्षु बसता है, और फिर भिक्षु की संख्या भी पर्याप्त नहीं है। तो फिर उसके अंदर अब फिर हमें कुछ अपने में से तैयार करने पड़ेंगे लोग। हमने उस पर काम किया। मैं आप सबको इस बात के लिए निमंत्रण दूंगा कि आप लोग कभी राजस्थान आए या फिर दोबारा इस प्रकार का कभी प्रोग्राम हो। मुझे ये प्रोग्राम इतना शानदार होगा, मुझे आइडिया नहीं था। अगर आइडिया होता तो फिर मैं आपको भी एग्जाम्पल लेकर के आता हूँ। तो यह जो काम है, इस काम को हमें बहुत गंभीरता से करना है। और इसके बाद जो बात समझ में आई कि युवाओं में और बुजुर्गों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। और समाज में एक आम बात कही जा रही है क्या, कि जो आदमी रिटायर हो गया वो किसी काम का नहीं है, उसको सरकार ने निकाल दिया तो फिर समाज में मतलब करेंगे। हमारे वहां आम भाषा में कहते हैं कि साठी और बुद्धि नाठी, अर्थात कि जो आयु 60 साल ले गया उसकी बुद्धि चली गई। मैं कहता हूं इससे बुरी बात क्या हो सकती है संसार में कि जिस व्यक्ति ने 60 बसंत देखे हो जीवन के और अनुभव का अथाह भंडार हो, हम उसके लिए इस प्रकार की गंदी और जहरीले इस्तेमाल करते हैं कि हमारे बुजुर्ग का दिमाग खराब हो। हमारे बुजुर्ग समझते नहीं है। हम तो धम का काम, मशीन का काम, मूवमेंट का काम बहुत जोरदार ढंग से करते, परंतु क्या करें, ये जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये जो है ना सीनियर सिटीजन बैठे हैं, इनकी वजह से हमारा काम ठीक नहीं चलता। अनुभव है। हम कहते हैं हमने बस्ती बस्ती जाकर के लोगों को तैयार किया कि अब तुम जोड़ियां बनाओ। अच्छा, किस प्रकार की जोड़ियां? दादा और पोता की जोड़ियां। पोता समझते हैं आप? दादा का अंतिम मित्र कौन है? उसका पोता है। और फिर जो पोता है उसका प्रथम दोस्त कौन है डॉक्टर साहब? दादा है। और जब दादा पोता की जोड़ी बनेगी तो वह नागौरी बैल की तरह, एग्रीकल्चर से आप तो आदमी सर कि नागौरी बैल सबसे मजबूत होता है, जहां हल डालोगे वहीं से पार कर देगा। बुजुर्गों का अनुभव है और फिर युवाओं की ताकत इस मूवमेंट को गति दे सकती है, वरना खेल खाली है। दोस्तों, हमने भी शांति शिक्षा विहार की जो टीम थी उसने इस प्रकार की जोड़ियां बनाई और बीच के आदमी को हटा करके बुजुर्गों को ये कहा कि आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता, बताइए। और फिर प्रत्येक पुत्र को ये पता है कि उसका पिता उसकी बात नहीं मानता। यह संघर्ष चलता है और चलता रहेगा, परंतु दादा पोता नाना और पोता आपस में बात मानते हैं। फिर हमने उनको तैयार किया सिर्फ ताकि वो बीच में थोड़ा, जब उनको तैयार किया तो फिर घर की महिलाएं सब तैयार हुई। हमें कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं किया। और फिर उसमें उस एक्सपीरियंस से हमें क्या लाभ मिला? उस एक्सपीरियंस से ये लाभ मिला कि राजस्थान में जो सामाजिक पंचायतें होती हैं, पंच पटेलों का जो मूवमेंट रहता है वो कमजोर हो, और वो कमजोर होने से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान आम जनता तक पूर्ण रूप में पहुंचा। क्योंकि इस पूरे देश में जितना मैंने राजस्थान को बहुत पास से देखा है कि उसमें समाज एक तरफ है और संविधान एक तरफ है। जब समाज का पंच बैठता है तो बाकी में सारी गौण हो जाती हैं। तो हमने उस गौणता को तोड़ने के लिए पूरा योजना बनाई। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बुजुर्गों को नकारें नहीं। इस संसार में केवल 4 ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे लिए सही सोच सकते हैं, तुम्हें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, और इस बात को बच्चे अपनी बात को जहन में बिठा लें। वो 4 लोग कौन हैं? तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे आचार्य जो टीचर हैं, और तुम्हारा आर्थिक। इनसे बड़ा कोई तुम्हारा हितकारी नहीं है। और इन चारों को संतुष्ट रखने का ढंग क्या है? इन चारों को संतुष्ट रखने का ढंग दान है। क्या? दान। अभी जो आदमी ने आपने कहा कि दान सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, परंतु हम तो विद्यार्थी हैं, हम तो पढ़ने वाले हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है या है?
हमारे पास पैसा नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी दान किया जाता, उसके बावजूद भी दान किया जा सकता है कि जब घर में रोटी बने तो रोटी बनते ही, पहले रोटी बनते ही अपने बुजुर्गों को भोजन दो। दूसरा, वस्त्र का दान, अपने बुजुर्गों के लिए सर्दी गर्मी के सही कपड़ों की व्यवस्था करो। दवाई का दान, औषधि का दान, उनके लिए सही समय पर औषधियां मिलनी चाहिए। उनके लिए आवास का दान, उन्हें वातानुकूलित अच्छे घर में रखना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है और उनके जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना हमारी जिम्मेवारी है। केवल यही जो 4 लोग हैं, इनके प्रति जो आप दान देंगे वही तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। क्यों? क्योंकि आप भले ही पूरे संसार में नमस्ते करते रहो, अब जो अग्रिम पंक्ति में इतने सारे जो सम्मानित लोग बैठे हैं, अब आप सब आओ और फिर आप सबको नमस्ते करके जाओ। तो इसका रूप क्या आएगा पता है? इसका रूप ये आएगा कि ये बच्चा बहुत संस्कारी है, गुड बॉय, गुड गर्ल, वेरी गुड। पर अगर वही बच्चा सुबह उठ करके अपने मम्मी पापा को जय भी नमो बुधाई नहीं कहता तो वो बैड बॉय है। उठते ही सबसे पहले मम्मी पापा के प्रति अभिवादन करना। बुद्ध क्या कहते हैं? अभिवादनशीलस्य ऋच बुद्धा पचाइनो चत्तारो धर्मा वदन्ति आयु वर्णो सुंदरम। अगर तुम तुम्हारे सुख में वृद्धि करना चाहते हो, ताकत में वृद्धि करना चाहते हो, तुम तुम्हारे वर्ण में वृद्धि करना चाहते हो, तो फिर बुजुर्गों का अभिवादन जरूरी है। और इस बात को आप अभी से इसी इंटरनेशनल ये जो सेमिनार हो रहा है, यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि मैं जब उठूंगा तो उठते ही अपने मम्मी पापा को जय भीम नमो बुधाय बोलूंगा। जैसे आप बोलना शुरू कर देंगे, आपकी 90% समस्याएं, उनकी डांट वैसे खत्म हो जाएंगी। रात गई बात खत्म। अगर उन्होंने आपको डांट दिया, फटकार दिया या कुछ बोल दिया तो अब भागना नहीं है। सुबह उठ करके नमो बुधाय माँ, पापा नमो बुधाय जय भीम, बस इतना कह दोगे तो पूरे दिन की गलतियां माफ है। माँ बाप का हृदय बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, और माँ का तो कोई अंत ही नहीं है। माँ का हृदय बहुत बड़ा है दोस्तों। इसलिए उनके प्रति आदर और जो आदर का भाव है उसको बना कर रखना। अंतिम बात रखते हुए समेटता हूं अपनी बात को, समय अधिक हो रहा है कि हमने एक बात हमारे वो समझ में आई कि जब हम दिल्ली की तरफ आते हैं तो नागनूरी है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी भारत भूमि नागों के अधीन है और नागवंशी हम हैं। इसलिए हमें हमारे बुजुर्ग जो जाने में बातें कहते हैं उनसे भी सामंजस्य करना चाहिए। तो उसके लिए भी पढ़ना चाहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। और फिर जब से मुझे ये बात समझ में आई कि अभी और कुछ जानना बाकी है और कुछ पढ़ना बाकी है, तब से फिर मैंने अभी पढ़ना चालू किया। अभी जो मेरा लेटेस्ट के अंदर, अभी मैं 1 अगस्त से ज्वाइन करूंगा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर बुद्ध स्टडीज, कि अभी अपने को बहुत कुछ जानना और उसको खोजना बाकी है। कि जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, और फिर उस सेवा में हर एक व्यक्ति को अपने अपने हिस्से का काम करते रहना है। जब हम अपने अपने हिस्से का काम करेंगे और लोगों को मानसिक गुलामी से आजाद करवा करके उनके स्वाभिमान को मजबूत करेंगे, तब वह व्यक्ति मुक्त मानव के रूप में स्थापित होगा। जब व्यक्ति मुक्त मानव के रूप में स्थापित होगा, तब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महाकारुणिक बुद्ध, कबीर, नानक, शाहूदास की बात पूरी होती है। तो हमने किस प्रकार से आदरणीय उधर राजस्थान के सबसे पिछड़े हुए एरिया में ये स्टार्ट किया मूवमेंट, और फिर उस मूवमेंट का जो असर हम पे ये आया कि हमें 5 जगह उधर ना लोगों ने शांति शिक्षा विहार के नाम से हॉस्टल बनाने के लिए जमीनें डाली कि आप काम कीजिए, कोई पैसे की कमी नहीं है, कोई जमीन की कमी नहीं है। और ये वास्तव में ये ठीक बात है। और फिर यह सारा जो मूवमेंट चल रहा है, हमारे बीच आदरणीय डीके केसरी सर और आदरणीय सुगत जी विराजमान है कि आपने ठीक है, हम सबने का राजस्थान को एक मॉडल के रूप में पकड़ा और फिर आप लगातार उसके लिए व्यवस्थाएं करते हैं और यह एक टीम के रूप में हम सबके साथ हैं।
तो मैं इसी बात से आप सबसे रजा चाहूँगा। सभी की अपनी प्रतिबद्धताएं हैं। इसी बीच आप सबने मुझे सुना, आप सबने समय दिया। अगर लोगों कुछ ऊंची शब्द निकल भी गए हों तो उस बात के लिए क्षमा प्रार्थना करना।